हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। बेटा आज आपा करना है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स फॉर क्लास +2। नवंबर टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰਮ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 5 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਟੇਜ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। और इन्हें न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत ही आसान है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਲੌਗ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो लॉग ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਲੌਗ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੁਡੇ I will be covering all types of MCQs which are numerical based and ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦ ਤੱਕ ਟੋਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2A they are reacting with 3B ਔਰ 5C ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜਸਟ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ A ਔਰ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੋਲ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ T 1 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ A ਔਰ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀ, ਜਦੋਂ T 0 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ROR ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਆਫ disappearance of reactants, disappearance of reactants which is equal to rate of appearance of products। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਡ ਰੇਟ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ हैं, खपत हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, और प्रोडक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ हैं, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ A plus 2B ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ 3C, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ।
सो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस स्पीड ते रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं ते किस स्पीड ते प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स वास्ते आपां हमेशा माइनस साइन लेना, ठीक। ते जिन्ना भी इनदा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ओनू 1 अपॉन करके आपां अगे लिख देना, ठीक है। जिहड़ी स्क्वायर ब्रैकेट है इनका मतलब हुंदा है कंसंट्रेशन। सो डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर टाइम, मतलब कहण दा ये है कि जिन्नी ए दी कंसंट्रेशन च चेंज आई, डेल्टा दा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ते इत्थे माइनस साइन लगाना है। जे अपने कोले कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे विच बेटे जेड़ा भी नंबर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दे सामने लिखा होया है उन्होंने आपां कहने हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो फॉर्मूला तुहानू क्लियर हो गया। सी दे लिए जे आपां रेट दसनी है तो 1/3, इत्थे आपां माइनस नहीं लिखता, इत्थे आपां प्लस ले रहे हैं। डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसी ते आधारित बेटा आ क्वेश्चन तुहाडे सामने है कि एक रिएक्शन N2 + 3H2 दे लई 2NH3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। आपां नू जिहड़ी रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनीया यानी कि प्रोडक्ट दी टर्म दे विच इंदी दित्ती हुई है आपां नू 2.4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन N2 टर्म्स, मतलब इंदी शक्ल च आपां आंसर देना, ठीक है। सो आपां हुण लिख लिए पहला कि N2 दी शक्ल च किस तरह होएगा, डेल्टा दे नाल आपां इहनू N2 लिख दिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम, यही होएगी रेट, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू जे आपां रिएक्टेंट हाइड्रोजन दी टर्म च लिखनी होवे तां इस तरीके नाल लिखांगे, ते जे आपां अमोनिया दी टर्म च लिखनी होवे तां आपां इस तरीके नाल लिख दवांगे, ठीक है। सो आपां नूं हुण आ चीज दित्ती हुई है, कितनी दित्ती हुई है 2.4 × 10⁻⁻⁴ आ पूछी हुई है। सो आपां नूं पूछा गया है कि N2 दी टर्म दे विच आपां रेट दसनी है। सो इट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। आ चीज सानू कितनी दित्ती है, यू कैन सी कि ये दित्ती हुई है सानू 2.4 × 10⁻⁻⁴। सो पूछी हुई है आपां नू नाइट्रोजन दी टर्म्स दे विच रेट ऑफ रिएक्शन। सो कितना आ जाएगा अपने को, इनू कैंसल आउट कर दो तो ये बन जाएगा 1.2 × 10⁻⁻⁴। आ वाला माइनस हुण इधरले पासे आपां लगा दिए तां इधर N2 दी टर्म्स दे विच अपने कोले रेट आ गई। सो अपने कोले केड़ी ऑप्शन बनेगी, इट विल बी, यू कैन सी ए ऑप्शन, क्लियर। सो अपने कोले इत्थे आंसर विल बी ए। सो इसे तरह ही एक होर क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 gives rise to 2NH3। इस रिएक्शन दे विच जेडी रेट है वो अमोनिया दी यानी प्रोडक्ट दी टर्म दे विच आ लिखी हुई है अपने कोले। आपां फाइंड की करना है रेट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन दी टर्म्स दे विच आपां हाइड्रोजन दी टर्म्स दे विच रेट फाइंड करनी है। तो सब तो पहला बेटे जो आपां रेट दे लई तिन्ना दी टर्म दे विच आपां फार्मूला लिख लैने हैं। नाइट्रोजन दे लिए की होएगा, इट विल बी dN2 अपॉन dt माइनस दे विच, एंड इट विल बी इक्वल टू -1/3 d हाइड्रोजन अपॉन dt, और अमोनिया दी टर्म दे विच 1/2 d अमोनिया अपॉन dt, ठीक है। हुण आ चीज आपां नूं दित्ती हुई है ते आ चीज आपां नूं पुछी हुई है। सो आपां इन्हां दोनां नूं कंसीडर कर लीए, वैल्यूज पुट करिए, इत्थे कितनी वैल्यू पुट करांगे जो आपां नूं दित्ती हुई है 2.4 × 10⁻⁻⁴, आ हाफ उदां दा उदां लिख लिया। आ चीज पूछी हुई है, इनू इधर रहन दिता dH2 अपॉन dt माइनस दे नाल, ते 3 नूं आपां इधर लै गए, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 बन गया।
कैंसल करो ते अपने को की आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, सो अपनी इत्थे ए ऑप्शन बन जाती है। तो कोई भी तुहानू इस तरीके का सवाल नजर आता है, किसी एक टर्म दे विच तुहानू रेट दिती होएगी ते दूजी टर्म च पूछी होएगी, मेन गल ये है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुंदा है वो उनका इनवर्स ले लैने आपां, ते जे रिएक्टेंट है तो आपां अगे माइनस लगाना। इनवर्स लैन का मतलब है एक बटा करके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लिख देना। ठीक, सो हुण तुसी अपने दिमाग च ये चीज फिट कर लो कि जे तुहानू इस तरीके नाल कोई भी चीज पूछी गई है, मान लो तुहानू ए दी शक्ल दे विच रिएक्शन रेट दिता होया है ते बी दी शक्ल च तुहानू पूछे है, तो आपां पहले इहदे लई इक्वेशन लिख के देखिए कितना लिखी जाएगी। माइनस लगाना है रिएक्टेंट लई dA/dt, और रिएक्टेंट दे लई कदे नहीं भूलना जेड़ा अगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका आपां इनवर्स लेना है। सो बी दा आपां dB/dt, सी दे लई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी आपां लवांगे वो पॉजिटिव ही रहेगा, इत्थे माइनस नहीं लगाना। सो इनदे विचों तुहानू हो सकदा है आ चीज दित्ती होवे, आ पूछी होवे, आ वाली चीज पूछी होवे या आ वाली पूछी होवे, इक्वल टू है विच। सो कोई भी दित्ती हुई है ते बाकी पूछियां हुई है, यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे टाइप दे जिहड़े टाइप 2 क्वेश्चंस है वो है कि आपां रेट लॉ दे उत्तों ऑर्डर किवें फाइंड आउट करना है। हुण जिवें कोई इक्वेशन है, सपोज 2a + 3b + 4c गिव्स राइज टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो रेट लॉ दे अकॉर्डिंगली रेट इज इक्वल टू k, रेट कांस्टेंट, a दी पावर 2, b दी पावर 1 और c दी पावर 0। ते तुहानू पूछा गया है कि कैलकुलेट द ऑर्डर, ते आपां इत्थे ऑर्डर किवें कैलकुलेट करांगे। रेट लॉ दे विच जेड़ियां कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट च जो भी लिखा होया है उनदियां जेड़ियां पावर्स हैं आपां उन्हां नू जोड़ दांगे। सो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। रेट लॉ दे विच कंसंट्रेशन टर्म्स दियां जेड़ियां पावर्स हैं उन्हां पावर्स दे जोड़ नू आपां कहने हैं ऑर्डर। सो इत्थे अपने कोले आ गया ऑर्डर 3। सो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है जिंदे च आपां ऑर्डर कढना हुंदा है ते आपां नू रेट लॉ पता है। फॉर एग्जाम्पल हुण आपां नू आ सवाल पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दसो जिंदा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ है। सो इत्थे आपां देखो पावर्स जेड़ियां अपने कोले 1 एंड हाफ। सो जे आपां इन्हां दा जोड़ लगाने हैं 1 एंड हाफ आ जाएगा। 1 एंड हाफ दा मतलब सो कितना बन जाएगा ये 3/2। सो 3/2 का मतलब हुंदा है 1.5। सो अपनी इत्थे बी ऑप्शन आंसर आ जाएगी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1.5। नेक्स्ट टाइप द क्वेश्चन है कि जे आपां नू रेट लॉ दिता होया है ते तुहानू ये पूछा है भी कंसंट्रेशन डबल करती या ट्रिपल करती, 3 गुना करती या 2 गुनी करती, तो रेट ते की इफेक्ट आऊगा। देखो जे सपोज मान लो एक आ रेट एक्सप्रेशन दिता होया तुहानू कहा कि ए दी जेड़ी कंसंट्रेशन है वो आपां 2 टाइम्स करती तां अपनी रेट कितनी हो जाएगी। ए दा आपां 2 टाइम्स करता, हुण आ 2 दा स्क्वायर यानी कि इत्थे 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ते जे इसे चीज दे विच तुहानू ये कहा गया कि ए दी कंसंट्रेशन जेड़ी है वो 3 टाइम्स करती, सो k 3a स्क्वायर तो उदा दा उदा रहेगा। 3 दा स्क्वायर मतलब 3 3 9, सो 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जे तुहानू कहा जावे कि ए दी कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, फिर की बनेगा। फिर होएगा वैल्यू पुट करके देखो, ए दी वैल्यू पहले नालों हाफ होगी। ऑर्डर दे विच बेटे इत्थे तो 2 ही रहेगा ना, सेकंड ऑर्डर है तो 1/2 दा स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 दा स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया।
सो पहले वाले रेट दे नालों नाउ रेट विल बी रिड्यूस्ड टू 1/4। सो अपन ਨੂੰ इस तरीके ਦੇ सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2a + b + c ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ a ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ b और c ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ what will be rate, ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ a b c ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਸਕੁਆਇਰ b c ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ c ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ a b c ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ a ਦੀ ਜੇ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ a ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, b ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ b, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सो रेट विल बी नाउ 8 टाइम्स k, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ k ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਟਾਈम्स ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ A ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 8 ਟਾइम्स ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਨਾउ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। For a second order reaction, rate at a particular time x, if initial concentration is tripled, rate will become। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ second order reaction। So second order reaction ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ rate is equal to k, ਜਿਹੜਾ ਵੀ reactant ਹੈ ਉਹਦਾ square, ਤਾਂ ਹੀ order ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਬਣੇਗਾ ਨਾ, second order ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ initial concentration triple ਹੋ ਗਈ, मतलब ट्रिपल का मतलब कि a ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3a ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਟਾਈम्स a ट्रिपल हो गया, स्क्वायर उदा ਦਾ ਉਦਾਂ ਰਿਹਾ। सो रेट कितनी हो जाएगी, रेट विल नाउ बिकम इक्वल टू 3 ਦਾ स्क्वायर करो 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सो आवर ऑप्शन विल बी 9 टाइम्स x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेट ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ना x है ਤਾਂ 9 गुना हो जाएगी। सो अपना ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ A is increased 10 times ਔਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 times increase ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ what is order with respect to A। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਟਾਈम्स ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 10 ਟਾਈम्स ਕੀਤੀ। A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10A ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ A ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 10 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 100 ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ। nth ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ, ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दरअसल ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ k ਫॉर nth ਆਰਡਰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਇੰਦੀ ਬੇਟੇ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ n ਔਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਪੋਜ਼ n इज इक्वल टू 0, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੋਲ पर लीटर 1 माइनस 0, ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ n is equal to 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ n is equal to 1, ਸੋ 1 minus 1 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲੇ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। जे n 2 है, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 है, 1 माइनस 2 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ। -1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
कि मोल इनवर्स और लिटर जेड़ा है -1 +1 बन जाएगा और पर सेकेंड। इसे तरीके नाल जे तुहाडे कोले कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर है, मान लो हाफ ऑर्डर है, ठीक है, तो आपां इत्थे n दी वैल्यू हाफ पुट कर दांगे, 1 माइनस हाफ अपने कोले हाफ आ जाएगा। सो हाफ नु मोल दी पावर दे नाल 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, अपने कोले बन जाएगा मोल रेज टू पावर हाफ, लिटर रेज टू पावर माइनस हाफ और पर सेकेंड, ये अपने यूनिट्स बन जाएंगे। सो इस ते बेस्ड जेडे सवाल है कुछ इस तरह दे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन च देखो, इस क्वेश्चन च स्टेटमेंट है कि वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिएक्शन इज 2.96 into 10 raised to power -30 पर सेकेंड। ते पूछा कि आपां नु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो आपां इत्थे के दे यूनिट्स देखने हैं। हुण के दे यूनिट्स पर सेकेंड जेडे है वो फर्स्ट ऑर्डर ले हुंदे हैं। सो अपना आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होएगी। सो इस तरीके दे नाल जदों तुहानू के दी वैल्यू दित्ती हुई है, तुसी उहदे यूनिट्स तो पहचानना है कि केड़े ऑर्डर दी यह रिएक्शन होएगी। नेक्स्ट जेडी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप है वो आपां हुण करन जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स दी, जेडी की आधारित है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x। इनदे ते बेस्ड सवाल जेडे है ये वेरी वेरी श्योर, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनदे ते बेस्ड सवाल सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो के दा मतलब हुंदा है रेट कांस्टेंट, टी दा मतलब हुंदा है टाइम, ठीक है। सो ये दो चीजां तो सानू पता ही है। रेट कांस्टेंट किसे रिएक्शन दे लई कांस्टेंट हुंदा है, फिक्स्ड हुंदा है, ठीक है। सो ए जेड़ी है ए हुंदी है ओरिजिनल कंसंट्रेशन, जिन्हों आपां कह दिन्ने हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनू आपां ओरिजिनल कंसंट्रेशन भी कह दिन्ने, जेड़ी आपां रिएक्शन शुरू होने तो पहला लई सी। और जदों कुछ समा बीत गया तां ए दे विचों दी एक्स हिस्सा जेड़ा है वो कंज्यूम हो गया, तो बच किन्ना गया पिछे a माइनस एक्स। शुरू च आपां a लिता सी, उनदे चो x कंज्यूम हो गया, तो लेफ्ट आउट किन्ना रह गया, बच किन्ना गया a माइनस एक्स। हुण जिवें तुहानूं ये पूछिया जांदा है भी 90% रिएक्शन होगी, जदों परसेंट दिता होया ना तां तुसीं a नूं 100 लै लो। 90% रिएक्शन होगी मतलब 90% रिएक्टेंट खत्म हो गया, 100 दे विचों 90 कंज्यूम हो गया। सो a माइनस एक्स कितना बनेगा 100 माइनस 90 यानी कि 10। जे तुहानूं कहा जाता है कि रिएक्शन 1/10 हुई है, अपनी कंप्लीट होगी 1/10, मतलब उत्थे a जेड़ा है वो 1 है ते जेड़ा x है वो 1/10वां हिस्सा कंप्लीट होया है, ठीक है। तो a माइनस एक्स कितना बन जाएगा 1 माइनस 1/10, तो इत्थे आ जाएगा अपने को 9/10, ठीक है। a माइनस एक्स आ बन जाएगा। सो इनदे ते आधारित बेटे आपां हुण क्वेश्चंस करने हैं। याद रखो ये सब तो इंपॉर्टेंट सवाल है। हुण आ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स ते आपां टाइम कढना है 75% कंप्लीशन वास्ते, ते आपां नूं आ ऑप्शंस दित्तियां होईयां। हुण अपने कोले फार्मूला तां यही है रेट लॉ दा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a ओवर a माइनस x। सो a किन्ना है आपां नूं दित्ता कि होया 20%। मैं तुहानूं दस्सिया भी जदों भी आपां परसेंट लैने आ a नूं आपां 100 लै लो। 20% कंप्लीट मतलब x किन्ना है 20, तो अपने कोले a माइनस एक्स किन्ना बन जाएगा 80, ठीक है। टाइम किन्ना है 10 मिनट्स, सो टाइम की थां ते आपां 10 पुट कर दिता ते इत्थे अपने कोले k दी वैल्यू आ जाएगी 0.0233। इत्थे बेटा मैं लॉग लेना भी तुहानूं हुणे ही सिखानी है, पहला आपां कंसैप्ट समझ लिए। हुण जदों अपने कोले k दी वैल्यू आ गई, k जिहड़ा है किसी भी रिएक्शन दे लई फिक्स्ड हुंदा है, k नहीं बदलदा कदे भी। आपां कैलकुलेट की करना है, जो आपां नूं पुछया की है कि 75% कंप्लीट होने दे लई कितना टाइम लगेगा। सो जे असी टाइम कढना है, टी नूं असी इधर लै जाइए, t इज इक्वल टू
2.303 बटा के कितना आ गया अपना 75% का मतलब ए जड़ा है वो 100 लेना है आपा 75% कंप्लीट यानी x 75 है तो अपने को हुन एज यू कैन सी इत्थे आ जाएगा अपने को log 100 over 25 ते इन्हां दी देखो जिहड़ियां वैल्यूज है 2.303 upon 0.0233 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ t is equal to 62.18 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ log ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ log ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ log ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਚਾਹੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਰਫ log ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ log ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ log ਵੈਲਿਊ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ log ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਉਹ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ log ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 473.7 ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ log ਲੈਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ log ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ log ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਿਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ log ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ 1 2 3 ਤਿੰਨ ਡਿਜਿਟ ਹੈ तो जिन्ने भी डिजिट है ना उनके चो आपां -1 करना इत्थे जिस तरह हुण 3 डिजिट है तो 3 डिजिट दे विचों -1 करांगे तो अपने को इत्थे आ जाएगा 2 ठीक है हुण पहले दो डिजिट्स नूं हुण आपां मैंटिसा वैल्यू देखनी है मैंटिसा वैल्यू इत्थे लिखनी है जिहड़ी वैल्यू पहले दो डिजिट्स नूं आपां लॉग टेबल दे विच देखना है उनकी वैल्यू किवें लैनी है पहले लॉग टेबल सामने रख के देखते हैं आप तुहाडे सामने बेटा लॉग टेबल पिया होया है लॉग टेबल दे विच जिहड़ा पहला कॉलम है इनदे विच 2 डिजिट्स चल रहे हैं ना सो आपां जिहड़ा भी अपना नंबर है उनदे पहले 2 डिजिट देखने हुंदे हैं 2 डिजिट के बाद जिहड़ा तीसरा डिजिट है तीसरा डिजिट उनदे थल्ले दी वैल्यू देखनी है जिवें हुण अपने कोले 4737 ये टोटल नंबर है ठीक है ਆਪਾਂ 47 पहले 2 डिजिट हो गए ना 47 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 7 ਦੇ ਨੀਚੇ 47 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣੀਆਂ 3 ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ 7 ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 47 ਦੇ ਇਹ ਪਿਆ ਬੇਟਾ 47 ਸੋ 47 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਸੋ 6749 ठीक है और इसी दे सामने आपा जाना है जिथे 7 लिखा हुआ है आ लिखा हुआ उपरों दी 7 यू कैन सी आ गया 7 सो 7 दी थल्ले 7 वाले डिजिट दे विच इत्थे आपां 47 दे सामने तो 47 दे सामने अपने को लाइक ए आ वैल्यू आ गई 6 सो अपने को हुण की कुछ आ गया तो आपां जेड़े पहले 2 डिजिट हैं उन्हां दी कॉलम नंबर 3 और डिफरेंस वाले 7 दे हेठां वैल्यू देखते हैं तो अपने को इत्थे आई है वैल्यू
6749 और 7 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 6749 plus 6 अपने कोले बन जाता है 6755 आ गया। करेक्टरिस्टिक पार्ट कितना है 2, मेंटिसा पार्ट आया 6755, तो अपना 473 मतलब 473.7 दा लॉग बन गया। log of this thing is equal to 2.6755। इसे तरीके नाल जे कोई आपां होर नंबर ले लैने हैं, suppose this is 5432, इत्थे मैं डेसिमल इत्थे प्लेस कर देनी है। याद रखो जेड़ी भी असी इंदी लॉग वैल्यू लैनी है, जो भी साडा आंसर आना है उनदे च डेसिमल तो लेफ्ट वाले पासे नूं असी की कहने हैं करैक्टरिस्टिक, और जेड़ा राइट वाला पासा है उन्होंने कहने हैं मेंटिसा। जेड़ा करैक्टरिस्टिक पार्ट है डेसिमल तो जिन्नी लेफ्ट वाली चीज़ां जिन्नी लेफ्ट वाली डिजिट्स हैं उनदे चों आपां एक माइनस करना है। हुण जिवें इत्थे डेसिमल तो लेफ्ट ते इक्को ही डिजिट है, एक दे विचों आपां एक माइनस कर दांगे तो इत्थे आ जाएगा साडे कोले 0। हुण आपां पहलियां दो डिजिट्स 54 नूं उनदी वैल्यू किंदे थल्ले देखांगे, एक तां 3 दे थल्ले देखांगे ते डिफरेंस दे विचों दी 2 दे थल्ले देखांगे। देख के वैल्यूज लिखियां जान हुण जरा। 54 दे सामने 3 दे हेठां 7348 और इंदे च आपां 2 दे थल्ले देख रहे हैं वैल्यू 2 आ रही है 7348 और 2। सो 73482 इनू हुण आपां ऐड करना है 7348 दे यूनिट प्लेस ते ऐड करना है। ये कितना बन जाएगा? सो अपना आंसर इत्थे करैक्टरिस्टिक 0 आ चुका है 7350। सो 0.7350 अपना इसका लॉग दा आंसर हो जाएगा। सपोज अपने कोले हुण कोई नंबर है जिवें 0.004516, आपां इंदा लॉग लेना। हुण इत्थे तां डेसिमल दे इधरली साइड ते कोई डिजिट है ही नहीं, सो आपां करैक्टरिस्टिक किवें देखांगे? आपां की करते हैं इस डेसिमल नूं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दे सामने उनके अगे रख देने। किन्ने प्लेसेस आपां नूं मूव कराने पे? 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। जिन्ने प्लेसेस आपां डेसिमल नूं मूव करा रहे हैं इत्थों दी इत्थे लेके जा रहे हैं, सो ओना अपना करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। फर्क की होएगा? 3 प्लेसेस मूव कराए है 3 बार पा दांगे इहदे उत्ते, ठीक है। सो ये अपनी करैक्टरिस्टिक वैल्यू आ गई। हुण आपां मेंटिसा कितना लिखना है? फिर उसे तरीके नाल पहलियां दो डिजिट्स यानी 45 दे सामने 1 दे हेठां वैल्यू देखांगे ते इंदे विच आपां प्लस कर दांगे जिहड़ी डिफरेंस दे कॉलम दे विच 6 दे थल्ले वैल्यू होएगी। सो 45 दी आपां 1 दे सामने वैल्यू देखदे हैं, तो अपने कोले आ गया 6542। 1 दे हेठां ही वैल्यू आई है ते 6 दे हेठां डिफरेंस दे 6 वाली वैल्यू ही आई है। तो जदों इनू आपां जोड़ांगे 6542 और यूनिट प्लेस ते 6 जोड़ दिता तो ये बन जाएगा अपने कोले 6548। सो अपना आंसर 3 बार 0.6548। सो आई होप हुण तुहानू लॉग किवें लेना ये क्लीयर हो गया होएगा। हमेशा दे लई याद रखो कोई भी नंबर है, सपोज तुसीं 4946 नंबर लै रहे हो, डेसिमल इत्थे है, डेसिमल तो पहला जिन्ने डिजिट है, जे इत्थे आ नंबर है मान लो आ नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो जिन्ने भी डिजिट्स हैं उन्हां डिजिट्स दे विचों एक माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 दे विचों एक माइनस कर दो। सो 5 अपना करैक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। हुण जदों आपां मेंटिसा लिखना है पहले दो डिजिट्स नूं तीसरे और चौथे दे नीचे, तीसरे कॉलम दे सामने और चौथा डिफरेंस दे विचों लेना है। इन्हां दी जो वैल्यू होएगी उन्हों ऐड करके इत्थे अपने कोले मेंटिसा दी वैल्यू आ जाएगी। सो इहदे नाल जिन्ना तुहानूं रिक्वायर्ड है वो लॉग इन्ना इनफ है बेटा, लॉग वैल्यू इन्ने च समझ आ जानी चाहिए। सो बेटे जदों हुण आपां नूं लॉग लेना आ गया तो आपां इस सवाल नूं हैंडल करने की कोशिश करते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड।
60 पर सेकेंड। सो के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम्स ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ है to reduce the concentration of reaction to 1/10 of its initial value, कि कंसंट्रेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ a x 1/10 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2.303 ਬਟਾ t log a over a minus x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ k ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 60, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ t, ਸੋ t ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो a कितना दिता होया 1, बिकॉज जो भी कोई तुहानू वैल्यू फ्रैक्शन च दिती है तो a तुसी 1 लेना है। इत्थे हुण a minus x 1/10 दिता होया है। सो की आ जाएगा अपने कोले t नू इधर ले जाइए 2.303 आ 60 इत्थे आ जाएगा log जो इनू सारे 10 ऊपर लेके जावांगे log 10 दी वैल्यू हुंदी है 1, log 10 is equal to 1। सो अपने को आंसर आ जाता है इत्थे 3.8 into 10 raised to power minus 2, क्योंकि अपने को आया सी 0.038 सेकेंड्स। जो इनू आपां साइंटिफिक नोटेशन च लिखते हैं तो डेसिमल जिहड़ा है किन्ने प्लेसेस इधरले पासे गया 2 प्लेसेस गया, तो इत्थे आपां जिहड़ी पावर है वो -2 लिख दी। जिन्ने प्लेसेस डेसिमल राइट वाल जाता है उन्नी पावर नेगेटिव च लिख देने आपां। सो अपने को आंसर आ जाएगा 3.8 into 10 raised to power minus 2 seconds। सो इसी तरह का एक होर सवाल करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट के विच। सो अपने को पहली चीज दी हुई है 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, ठीक है। दूसरी चीज अपन पूछी है कि टाइम दसो सानू जदों ये 60% कंप्लीट हो जाएगी। सो बेटा इदां दे सवालां दे विच आपां पहले वाली डाटा तो इस पहले वाले तो आपां के कढ लैंदे हैं ते के जिहड़ा कांस्टेंट हुंदा है। दूजी वारी आपां नू फिर वही इक्वेशन अप्लाई करदे हैं, के दी वैल्यू पुट कर दिंदे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन के पता है 2.303 अपॉन t log a over a minus x। पहला अपन क्या 15% कंप्लीट, इनका मतलब कि log जेड़ा है वो आ वैल्यू का लेना पड़ेगा अपन 2.303 टाइम कितना है 20 मिनट्स, 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। तो इत्थों दी अपने को के निकले आएगा। जिवें इत्थे अपने को के दी वैल्यू आ गई 8.13 into 10 raised to power minus 3। हुण आपां इस के दी वैल्यू नू फिर दोबारा इस इक्वेशन च पुट करांगे। सो अपनी हुण जिहड़ी इक्वेशन है जदों आपां दोबारा लिखदे हैं तां यही इक्वेशन दे विच आपां 60% रिएक्शन होण वास्ते कितना टाइम लग्या। सो के दी वैल्यू आही वाली पुट कर दी 8.13 into 10 raised to power minus 3। टाइम असी कढना ते log 60% कंप्लीट का मतलब की होएगा a 100 लवांगे ते x जेड़ा है 60 लवांगे, ठीक है। सो अपने को हुण t दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 इनू इधर ले जाएंगे 8.13 into 10 raised to power minus 3 log 100 over 40। और इत्थे साडे कोले जदों पूरा सॉल्व कर लवांगे तां t दी जिहड़ी वैल्यू है वो 112.7 मिनट जिहड़ी है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इदां दे सवालां च भी इन्ने परसेंट रिएक्शन इन्ने मिनट च कंप्लीट है ते इन्ने परसेंट किन्ने च होएगी, उत्थे आपां आही फार्मूला 2 बारी लगाना। पहला आपां ये वैल्यू जो दित्ती हुई है उनदे तो के कढ लांगे ते दूसरी बारी इसे फार्मूले च के पुट करके टी कढ लवांगे। सो इस तरीके दे नाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इदां इनू हल करना है। इस तरह के
होर काफ़ी सवाल मैं नोट्स जिहड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स च पाऊंगी, उत्थे बेटा नाल तुहानू सप्लाई करूंगी क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ते यू शुड बी एबल टू डू इट। होणगे न्यूमेरिकल्स बेटा, डरन दी नहीं लोड़ है। जिहड़ी नैक्सट कैटेगरी है सवालों की MCQs जिहड़े न्यूमेरिकल आने हैं वो तुहानू हाफ लाइफ ते पूछे जाने। सो हाफ लाइफ नू आपां लिखदे हैं टी हाफ दे नाल। हाफ लाइफ हुंदी की है? हाफ लाइफ हुंदी है वो समा, that time in which the reactants are reduced to half of its initial concentration। मतलब ये कि जदों रिएक्टेंट जेड़ा है अपनी शुरुआती कंसंट्रेशन दा अद्धा रह जाए। जे आपां 100 ग्राम लिता सी तां जिन्ने समय दे विच ये 50 ग्राम रह गया ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ टी हाफ। मान लो 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ 100 ग्राम ਤੋਂ 50 ग्राम ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 50 ग्राम ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ? 25 ग्राम। अगले 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ग्राम। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जिन्नी इनिशियल कंसंट्रेशन सी उनदे तो अद्धा, जे आ इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इनदे तो अद्धा। ठीक है। सो टी हाफ जिहड़ी है उनका मतलब हुंदा है दैट टाइम पीरियड इन विच A reduces to A by 2। जिन्नी शुरू च असी कंसंट्रेशन लिखती सी उसदा अद्धा रह जाए उन्होंने आपां कहने हैं हाफ लाइफ। ते हाफ लाइफ ते बेस्ड जिहड़े न्यूमेरिकल आ बहुत सौखे हुंदे हैं क्योंकि इक्को ही फार्मूला उत्थे इस्तेमाल हुंदा है। वो फार्मूला है 0.693 बटा के। हुण आपां इस एक फार्मूले ते आधारित आपां सवाल करने हैं। के दिता होगा टी हाफ पूछ लैणगे, टी हाफ दिती होगी के पूछ लैणगे। कोई लॉग नहीं लेना, कुछ नहीं करना पैना, आपां नूं सीधा साधा अपना सवाल निकले आना है, अपने 2 नंबर पक्के। सो ये 2 टाइप दे हुण अपने कोले न्यूमेरिकल्स हैं जो आपां नूं पूछे जा सकते हैं हाफ लाइफ ते। पहला है कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दा कैलकुलेट करो जिंदा आपां नूं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट यानी के दिता होया है 200 पर सेकंड। सो जे आपां नूं के दिता होया है ਤਾਂ ਆਪਾਂ टी हाफ इस फॉर्मूले दी मदद दे नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टी हाफ कितना आ जाएगा अपने को? टी हाफ आ जाएगा 0.693 अपॉन 200 एंड आंसर कम्स आउट टू बी ए ऑप्शन 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड। सिंपल डिवाइड करना है और तो कुछ भी नहीं सी। टी हाफ ते दूजा जिहड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तुहानू पूछा जा सकता है वो है कि 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 16 मिनट्स। 50% का मतलब ये है कि 16 मिनट दे विच अद्धी रिएक्शन होगी। 50% का ये मतलब है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन वुड अकर इन 32 मिनट्स। सो 16 मिनट दे विच 50% हो गया। जे 100 ग्राम सी तो उनका 50 ग्राम रह गया 16 मिनट्स दे विच। हुण अगले 16 मिनट्स यानी कुल मिला के 32 मिनट्स दे विच कितनी रिएक्शन जिहड़ी है वो अपन की पूछा हुआ है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन वुड अकर इन 32 मिनट्स। सो इत्थे अपना की आंसर बनेगा? सो अपने को आ जाएगा कि 25% अपनी बच गई। 25% बच गई इनका मतलब कितनी रिएक्शन हो गई? व्हाट फ्रैक्शन वुड अकर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन वुड अकर। बेटा 75% हो जाएगी ताही अपने को 25% चीज पीछे बचेगी। सो 25% चीज पीछे बच गई ते रिएक्शन जिहड़ी है 75% होगी। सो इस तरीके नाल आपां टी हाफ वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने। सो अपने केमिकल काइनेटिक्स दे विच लास्ट टाइप दे जिहड़े न्यूमेरिकल्स रह गए वो बेस्ड हैं आर्हीनियस इक्वेशन ते। आर्हीनियस इक्वेशन की हुंदी है? आर्हीनियस इक्वेशन हुंदी है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। k जिहड़ा है रेट कांस्टेंट हुंदा है। ठीक है। सो रेट कांस्टेंट के बाद ए जिहड़ा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिन्हों आपां कहने हैं। ई ए हुंदी है अपने कोले एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी। आर हुंदा है गैस कांस्टेंट, ते जदों बेटे आपां ये सवाल करने हैं तो आपां गैस कांस्टेंट दी वैल्यू 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल लैनी है। ते जिहड़े टेंपरेचर है दैट इज टी इज टेंपरेचर। हुण जे आपां इसे इक्वेशन नू एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स T1 एंड T2 अपने कोले रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाते हैं, ते इसे इक्वेशन नू आपां किवें लिखांगे? देन वी विल बी राइटिंग log K2 by K1 will be equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। सो आपां इस फॉर्मूले नू याद रखना है, ते इस फॉर्मूले ते आधारित न्यूमेरिकल्स जिहड़े पूछे जा सकते हैं, उन्हां नू आपां हुण समझना है। सो अपने कोले क्वेश्चन है कि फॉर अ डीकंपोजिशन रिएक्शन वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स आर गिवन बिलो। आपां नू आह रेट कांस्टेंट्स दियां दो वैल्यू दित्तियां हुई हैं दो अलग अलग टेंपरेचर्स ते, ते आपां कैलकुलेट करनी है इत्थे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो इनू आपां किवें करांगे? फॉर्मूला अप्लाई करदे हैं आपां log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो आपां इत्थे वैल्यूज पुट कर दिए। हुण K1 ते K2 दियां वैल्यूज आपां नू दित्तियां होई हैं। सो जदों आपां वैल्यू पुट करांगे, सो K2 दी वैल्यू जिहड़ी आपां नू दित्ती हुई है 2.39 into 10 raised to power minus 7 और K1 दी दित्ती हुई है 2.15 into 10 raised to power minus 8। पूछे आपां नू EA एक्टिवेशन एनर्जी पूछी हुई है ना, तो 2.303 R दी वैल्यू मैं तुहानू कितनी दसी सी? 8.314। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमेशा एनी पुट करनी है आपां। सो टेंपरेचर T1 आपां कितना लिता है? 650। T2 कितना लिता है? 700। सो जदों आपां ये वैल्यूज पुट करांगे ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ EA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 182.254 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਊਲਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਲੋ ਜਾਊਲਸ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। सो बेटा हुण मैं होप करदी है कि तुहानू जिहड़े कैमिकल काइनेटिक्स दे न्यूमेरिकल्स है वो कढने आ गए होणगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर हो जाता है। तो आपां किहड़े-किहड़े टाइप दे न्यूमेरिकल्स कढने हैं? सिंपल तो शुरू होना है। सब तो पहला आपां रेट लॉ दे न्यूमेरिकल सिद्धे नहीं शुरू कर लेने। आपां सब तो पहला रेट की हुंदी है, जदों मैं तुहानू सिखाया सी ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे विच स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नू अगे रख के इनवर्स लैके आउंदा, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना है, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाना है। पहला तो आपां ओ वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसदे बाद आपां ऑर्डर फाइंड आउट करन वाले न्यूमेरिकल करने हैं रेट लॉ दे विचों दी। देन रेट लॉ दियां जिहड़ियां कंसंट्रेशन टर्म्स है उन्हां दियां पावर्स दे जोड़ नूं आपां कहने हैं ऑर्डर। ठीक है, उसदे बाद आपां ऑर्डर दियां रिपरकशंस, मतलब भी जे रिएक्शन दी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन आपां डबल करती ते जिहड़ी रेट है वो 4 टाइम्स होगी, इहदा मतलब ऑर्डर कितना होया? 2। ठीक है, तो उस तरीके दे सवाल भी आपां कड्डे। फिर इस दे बाद बेटा आपां वो सवाल कड्डे जिहड़े रेट लॉ ते आधारित सीगे। रेट लॉ ते आधारित मतलब रेट इक्वेशन ते आधारित, मतलब कि इन्ने परसेंट रिएक्शन इन्ने टाइम च होगी, इन्ने परसेंट रिएक्शन किन्ने टाइम च होगी। तो आप फॉर्मूला इको ही लगाना है, K इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A over A minus X। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਟਵਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
पहली वारी लगा के असी k दी वैल्यू कढनी है, दूजी वारी असी k दी वैल्यू पुट करके टाइम कढना है। पर साडे कोले a और a माइनस x ये वैल्यूज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ए दा मतलब हुंदा है इनिशियल कंसंट्रेशन, जिन्ना आपां शुरू च कोई चीज लित्ती है उन्होंने आपां कहने हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, ओरिजिनल कंसंट्रेशन। एक्स हुंदी है कि टी समय बाद किन्ना रिएक्टेंट खपत हो गया, कंज्यूम हो गया, रिएक्शन किन्ने परसेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, सो ए माइनस एक्स आपां उहदे अकॉर्डिंग कढ लांगे। देन आंदे आ बेटा हाफ लाइफ ते बेस्ड क्वेश्चन। हाफ लाइफ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਰਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। इन्ना न्यूमेरिकल्स दी ही तुसी प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच बेटे मैं तुहानू क्वेश्चंस दे दूंगी एंड जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ने ही तुहाडे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट छेती होणगे ते उन्नी एफिशिएंसी वधेगी, तुहाडे न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होणगे। सो ध्यान कर रखो कि प्रैक्टिस वध तो वध करनी है। आई होप यू enjoyed watching all this. Thank you.